Morning, everybody. Yeah, on the line. So, this is a book written by Ray Dalio. I'm about to present it. Uh, Let me get on directly to the introduction. First of all, I'll have some disclaimers. Because it is a book review, most of the content is a copyright content. So it is important. This review is intended only for AIF members. The review is meant only for educational purposes and comes under fair use policy. Most of the material in this review has been taken from the book, so all the credit goes to the author. The review is intended to encourage and enlighten the audience about the contents of the book and not to violate IPR. Thus, it should be governed under fair use policy and fair comment. इसके अलावा एक ये सबसे important disclaimer है, the review can only give you an idea of the contents of the book. To learn and have a better understanding, you are advised to get your own copy and read. So, who Ray Dalio really is? Ray Dalio is one of the greatest investors and entrepreneurs of our time. He started Bridgewater Associates in 1975 in his two-bedroom apartment. So it was a very modest startup, so to say. And today, Bridgewater manages an asset under management of $160 billion. That is 16,000 crore dollars. That is the AUM that Bridgewater Associates manages. Bridgewater is the largest hedge fund in the world and fifth most important company in the United States. Ray Dalio happens to appear on the Forbes 100 list of wealthiest people and Times 100 list of most important people. This is a brief introduction. For a detailed intro about Ray, you can refer the book. Now, Ray, Ray was he belonged to a very middle class family, a modest family, and he was a very average student. He was not good at studies, but Ray was always interested in making money. So he started at the age of 7 or 8 when he used to distribute papers, newspapers, or you will garden. He used to grass the gardens of other people, or he will manage shelves in the local stores. At around the age of 12 years, he used to caddy in the local golf links. He was a caddy. And while he was caddying in the golf links, he used to hear people talking about stock markets every day, which attracted him towards the stock market. So whatever he used to earn from caddying, he would invest it into the stock markets. So at that time, a 12-year-old child, he used to think कि जो सबसे सस्ता है वो सबसे better है, क्योंकि ज़्यादा खरीद सकता हूँ. So what he did is he invested all that he earned from caddying into Northeast Airlines, which was the only stock at that time which was trading the cheapest in the stock exchange. And luckily, the stock tripled and he tripled his investment. So he used to think at that time that the best idea for investing is to buy a cheap stock and let it run, which later on he realized that is not how market works. He then moved on to systematic investment planning and all those, SIP and everything. And later on, a lot of other strategies that he used, which we'll look at in a later part. $100,000. So after losing $100,000, when he sat down and he analyzed his mistake, he realized that the worst mistake that he made was to buy a stock which was falling down. In 1971, when the US President, the then US President Nixon, he announced that the US dollar will no more be linked to gold. It will not be convertible into gold. Ray Dalio, he expected that the dollar will fall. But to his surprise, the very next day, dollar goes up 4% in a single day. That particular trade made him lose $5 million out of his portfolio. But then he learned, he analyzed this mistake, and he learned that there are events that might not have happened in your lifetime, but they have happened in some other lifetimes or in some other markets. So when we trade into markets, it is important that we study all the markets for all the times. तो जैसे BSE में या NSE में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने शायद अपने ट्रेडिंग लाइफ टाइम में पिछले 7-8-10 सालों में नहीं देखी होंगी. But what he means to say is this is also one of the most important tenets of the Dow theory, that history repeats itself. तो मार्केट्स में कभी कुछ नया होता नहीं है, जो अभी हुआ है वो पहले कभी ना कभी हुआ है. So if you study all the markets for all the times, you might probably get a understanding of how they might react. Now, this is important. In 1979 to 1983, it was one of the worst periods that Ray experienced. Before this period, he was already an established name into the markets, but he lost a huge money in 1983-84.
Ray had a series of losses, and he realized that the most important thing was not knowing the future, but knowing how to react appropriately to the information available at each point of time. ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे फोरम में कई बार डिस्कस हुई है. राजू सर भी कई बार बोलते हैं कि आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग, राइट. तो क्या होता है कि वी आर एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ब्लाइंडेड बाय आवर ओन परसेप्शंस. कि अगर हमको लग रहा है कि मार्केट तेज है एंड मार्केट गिरे भी जा रहा है, या फिर अभी जैसा भी हो रहा है मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी इज गोइंग अप, एंड यू नो मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, लाइक आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट बट व्हाई इट इज गोइंग अप. तो क्या है कि आपको बार बार हर बार जब आपको लगेगा कि यार यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यू आर ऑलवेज टेकिंग शॉर्ट्स but not buying Nifty and riding the uptrend. So probably it is time you have to have a system wherein it gives you a break and gives you a time to think about whether you are wrong or not, right? So you must learn how to react to a situation rather than believing that you know something. Now what Ray did is, this is one of the most important things. The entire book runs through this. This is the only idea that is discussed in the entire book. What it does is that whenever he used to take a position, he used to write down the reasons of taking that position. You know, कि मैंने ये position क्यों ली है. And when he used to close that trade, he will again write down the reason of closing that trade, and then he will reflect upon the reasons of taking that position. तो क्या होता है, जब अलग अलग बार उन्होंने कोई भी पोजीशन लेते टाइम लिखा उसका रीजन, कि आपने जो भी आपके रीजन होंगे, आप गैन थ्योरी यूज करते हो, या आपने कोई मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर देखे, आपने आरएसआई देखा है, जो भी आपने जिस रीजन से आपने वो पोजीशन ली है, या फिर आपने कोई फंडामेंटल रीजन देखे, तो वो रीजन जब आप नोट करते हो हर बार, जो ट्रेडिंग जर्नल की बात एच के सर ने कही है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में कही है, उसके बाद कई बार मेरे ख्याल में हम लोगों की साया जी में एक थर्ड कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी वो चीज डिस्कस हुई थी, एंड इट हैज बीन डिस्कस अगेन एंड अगेन. तो ये जर्नल, व्हेन यू राइट डाउन दोस प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग अ ट्रेड एंड यू राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम दैट ट्रेड, then over a period of time, साल 2 साल 3 साल में आपके पास एक जर्नल क्रिएट हो जाता है wherein you have a journal of reasons या principles for taking a trade which reflect इन principles पे आपने जब ट्रेड लिया तो वो सक्सेसफुल था और कौन से वाले फेलियर थे. Now analyzing these principles, you can carve out those hard-bound principles which help you to take successful trade over and over again and again. उन्होंने ये भी बोला है कि he used to start on with his intuition. जैसे कई हम लोग भी कई बार यही करते हैं, देखिए जैसे ट्रिपल ए ट्रेड की बात हुई है, कई बार जो चीफ ने बोला है कि ट्रिपल ए ट्रेड होना चाहिए, तो आपने देखा होगा ऐसा जरूरी नहीं कि आपके जितने इंडिकेटर थे सारे एक ही मतलब सारे डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो तभी आपने ट्रेड लिया. A lot of time it happens कि आप अपने अगर आप 4 इंडिकेटर्स यूज करते हो तो आप उसमें से आपने 2 या 3 पे ट्रेड ले लिया, राइट. सो ही सेड दैट ही यूज्ड टू स्टार्ट ऑन विद एन इंट्यूशन, कि एक आध दो किसी इंडिकेटर से आ गया तो ट्रेड ले लिया विद अ स्मॉल पोजीशन, बट ही वुड राइट इट डाउन. एक वो लॉजिकली उसको राइट डाउन करेंगे कि किस प्रिंसिपल पे उन्होंने ट्रेड लिया, एंड capturing a map how would he would react in a particular situation, then he would code into a system. फिर इसको ये एक सिस्टम में कोड करेंगे, he will try to code it into a system and run a test on it. एक हिस्टोरिकल डेटा पे उसको रन करके देखेंगे, और अगर वो हिस्टोरिकल डेटा पे सक्सेसफुल सिस्टम है तो वो उसको यूज करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो वो उसमें कुछ करेक्शंस करने की कोशिश करेंगे. और दिस इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज डिस्कस्ड इन द बुक. ये पूरी बुक जो है ये प्रिंसिपल्स को लिखने पे और उनको कोड करके और कंप्यूटराइज्ड डिसीजन मेकिंग पे फोकस करती है. द एंटायर बुक इज नथिंग but focusing on writing down various principles, whether they are trading principles, working principles or life principles. और ये कोडिंग और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत फोकस किया है हमारी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में. मतलब डॉक्टर साहब ने कोडिंग के लिए काफी फोकस किया है, सानिध्य भाई ने इसके ऊपर सेशंस लिए हैं, हमारे पास कोडिंग के अलग से एक कॉन्फ्रेंस हुई है पूरी. तो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, बट इट इज समथिंग व्हिच वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्संस इन आवर फील्ड आल्सो सजेस्ट्स. तो ये मैं बताया कि जैसे it is highly focused on writing the principles and coding them. Now the system that Ray Dalio used was a techno-funda approach. He used to select stocks with fundamental analysis. He had various tools by which he would analyze the stock fundamentally and then shortlist it, and then he'll apply a technical research on those stocks, and when both the approaches gave him a direction, gave him a signal, that would be a strong signal where he will trade.
1983 crisis of Ray Dalio, which he had, it is one of the most important turning points in his career. Uh, Ray Dalio went broke. He went broke in 1983. He misjudged the economic crisis of Mexico at that time. Mexico in 1983 had a default in repayment of its loan, and Ray was extremely confident that the markets world over, including the US markets, will go down. And he was so confident that he had two different approaches for the market. One was that the market should fall down immediately. Another was that he said that if the government eases money into the market may respond for some time, and then eventually it will come down. So he was damn sure that the markets will come down, and he made positions accordingly. Now this hypothesis led him to make repeated positions in the market, anticipating that the market will go down without correcting himself. The government at that time responded by making money available in the market, like easing out the markets, and after certain time, the markets responded to the government's action. And the United States, it had an 18-year-long bull run, or in a non-inflationary way. That the inflation was also under control, and that was one of the best phases of the U.S. market. And Ray had the worst blows and losses of his career at that time. So much so that he went broke. The company went down from 40 employees to just one employee, that was Ray Dalio. He had to sell his apartment, his two-bedroom apartment, and he had to borrow $4,000 for his living expenses from his dad. And then he again started analyzing what went wrong. Because he must have done something badly wrong to come down to this after being successful enough. That reminded him of the losses that he made in 1971, of misjudging when the US delinked its dollar from gold. It reminded him to study history and how difficult timing the market was. So what is important here is to understand that what he has tried to tell him in this entire book is whenever you have losses, it is probably one of your mistakes. So it is important to learn from your mistakes and reflect upon them. Now, what he learned from his 1983 crisis, he proposed a radical open-minded approach. By open-minded approach, he means radical truth plus radical transparency. Radical truth is allowing people to speak the truth in front of you, allowing people to say what they really mean for you. And radical transparency is the decision-making process should be such that everybody knows that in a particular situation what kind of decision will be taken. तो जो ये प्रिंसिपल्स लिखने की बात करते हैं, जब आपके पास रिटन प्रिंसिपल्स होंगे तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी होगी. यू एवरीबडी विल नो कि ये तो लिखा हुआ है, आपको मालूम है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे. दैट इज व्हाट he suggested to seek out the smartest people who will disagree with you, to know when not to have an opinion. It is also important to know when not to have an opinion. Sometimes, जैसे आपको पता होता है, जैसे मुझे पता है कि जिन लोगों से मैं सजेशन लेता हूँ, some of them will always have a contrary opinion. तो जब मुझे अगर मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है, probably I will not seek opinion from them. You should know when not to seek an opinion. He always suggested and stressed on developing, testing and systemizing timeless universal principles and balancing the risk in ways which keeps the upside while reducing the downside. तो इसको तो मैं बहुत सिंपल में समझा सकता हूँ. ये जैसे टीम ने बोला, इट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि आप अपनी जो रिस्क है डाउनसाइड की आपकी लिमिटेड रहे और अपसाइड आप ओपन रखो. दैट इज व्हाट he learned from his crisis. Some very important things that he has discussed in his book is, this is Bunker Hunt. He was world's richest man at that time in 1980s, and he made a huge money in trading crudes. And in 1983, he traded silver. Bunker made positions in silver when silver was trading below $1. Some 80 cents, 90 cents per silver trade. When traded, he started making his positions. All the way up to $50. मतलब $1 से start करके $50 तक वो सिल्वर खरीदते ही गए. Ray Dalio made his positions at $1.3. 1.3 पे रे ने अपनी पोजीशंस बनाई थी सिल्वर में, और $10 पे इन्होंने एग्जिट कर लिया था. एंड ही यूज्ड टू सी सिल्वर गोइंग अप टू $50. $10 पे जब वो बाहर हो गए तो सिल्वर $50 तक गई, और वो देखते रहे, और उनको लगता था कि बंकर इज सो स्मार्ट एंड आई मेड अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ. आई एग्जिटेड अ ट्रेड which was a win-win all the way. And this is something that has happened in probably our lifetime also. 2011 में सिल्वर 30,000 पे ट्रेड करती थी, आप सबको मालूम होगा, और नवंबर 2010 में 30,000 का ब्रेकआउट आया, और शायद अप्रैल में 72,000 तक चली गई थी. And what happened in 2011 is exactly what happened in 1980.
तो जो अभी मैंने बोला था कि आप अलग अलग मार्केट्स को अलग अलग टाइम पे स्टडी करें, अब देखिए मई 1 मई 2011 को सिल्वर का रोल ओवर हुआ था, और रोल ओवर के बाद एक हफ्ते में सिल्वर 72,000 से 50,000 आ गई थी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन 1980. बंकर हैंड he made his position up till $50, but he did not had a proper exit strategy, and the world's richest man, he went broke into this trade. He went bankrupt in the silver trade क्योंकि $50 की सिल्वर, क्योंकि वो पूरे ऊपर तक भी एवरेज करते गए थे, उनके पास ऊपर का भी माल काफी पड़ा हुआ और उनके पास एग्जिट करने की स्ट्रेटजी नहीं थी. 2 हफ्ते में सिल्वर केम फ्रॉम $50 to below $10, and Bunker Hunt went broke. So what is important to understand is it doesn't matter how much amount of what amount of money you have invested. आपने कितना पैसा मार्केट में लगा रखा है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता. If the richest man in the world can go broke, you can go broke if you don't have a proper system. Pork belly trade एक रे ने डिस्कस करा है. जब ये दूसरों को देखते थे ट्रेड करते हुए, he got attracted with the asset class. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी एसेट क्लास में वेंचरिंग कर लेते हैं जो कि आपका फोर्टे नहीं है, या जिसको आपने प्रॉपर्ली स्टडी नहीं करा है. तो अगर आपको किसी ने बोल दिया, से फॉर एग्जांपल यू आर ट्रेडिंग इनटू स्टॉक्स, और किसी ने बोल दिया कि अरे कमोडिटीज बहुत अच्छी हैं, गोल्ड में अभी अच्छा पैसा आ रहा है, और आपने गोल्ड में पैसा लगा दिया बिना स्टडी करे, बिना ये समझे कि वो एसेट क्लास आपके मेंटल मैप को सूट करती है कि नहीं करती है. ऐसे इन्होंने पॉर्क बैलीज में ट्रेड डाला था, एंड ही मेड अ बिग ट्रेड इन पॉर्क बैलीज. काफी सारी क्वांटिटी में उन्होंने पॉर्क बैलीज ले लिया, एंड पॉर्क बैली इट यूज्ड टू ओपन ऑन अ डाउन सर्किट एवरी डे फॉर डेज टुगेदर. मतलब जब उनकी करीब 70-80% कैपिटल वाइप आउट हो गई उस ट्रेड में, तब उनको पहली बार मौका मिला उस ट्रेड से एग्जिट करने का. He says that you have to understand that you have to be aggressive and defensive in trading at the same time. एक ही साथ आपको एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों होना पड़ता है. You have to understand when to be aggressive and when to be defensive. एक और इन्होंने इंस्टेंस शेयर करा है एलन बॉन्ड का. एलन बॉन्ड वाज द रिचेस्ट मैन इन ऑस्ट्रेलिया एंड 5th richest man in the world, and he went broke because he did not had hedged his positions. एलन बॉन्ड ने यूएस डॉलर्स में लोन लिया था, क्योंकि यूएस डॉलर में उस टाइम पे बहुत इंटरेस्ट रेट कम थे यूएस में, तो यूएस डॉलर में इन्होंने लोन्स लिए, और उसको अपने ऑस्ट्रेलिया में ही यूज दोज लोन्स टू बाय एसेट्स इन ऑस्ट्रेलिया. और रे डैलियो के क्लाइंट भी थे. रे ने इनको सजेस्ट करा कि आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर को हेज कर लीजिए, बिकॉज आपको रीपेमेंट वापस यूएसडी में करना पड़ेगा. बट ही डिडंट लिसन, बिकॉज उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, यूएस की गिर रही थी, तो कंपैरेटिव जो रेट्स थे वो बेटर थे, तो ही डिड नॉट लिसन. बट व्हेन यूएस डॉलर स्टार्टेड गोइंग अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एलन बॉन्ड he went broke and he had to declare bankruptcy because he was not hedged. He has not hedged his position. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझनी होगी. यहाँ पे इन्होंने फिर ये बताया कि आपको कितनी रिस्क लेनी है. रिस्क मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली. Now what Ray says, मार्केट में क्या करते हैं, how he trades in the market. उनका कहना है कि for him he is wrestling into the markets. मतलब कि sometimes market will win and sometimes he will get a chance to win. So it is like a wrestling match. Profits and losses will keep on happening. He says that you have to think independently and creatively about how to make your bets. तो आपकी जो बेट्स है वो कैसे होनी चाहिए. कई बार ये डिस्कस हुआ हमारे फोरम में भी कि 1% आप अपनी कैपिटल का बेट करें या आधा % करें, तो वो आपकी बेट्स जो है वो कैसी होनी चाहिए कि इट नेवर मेक्स यू गो ब्रोक, और आपको कभी बैंक्रप्सी की सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़े. उस तरीके से आपकी बेट्स जो है वो प्लेस्ड होनी चाहिए मार्केट में. फिर it is inevitable that he says that it is inevitable. You make mistakes. You always make mistakes. अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम मिस्टेक दैट यू हैव मेड. अब इसके बाद व्हाट ही सजेस्ट इज कि अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसको सरफेस, मतलब ब्रिंग इट टू सरफेस रादर देन ब्रशिंग इट डाउन ऑन टू द कारपेट. उसको छुपाने की जगह आप उसको ढूंढिए, उसको सरफेस पे लेके आइए, मतलब उसको खोजिए एंड देन डायग्नोज इट. उस मिस्टेक का डायग्नोसिस करना जरूरी है कि एक्चुअली आपकी गलती क्या है. देयर आर टाइम्स, इसमें इन्होंने बोला देयर इज अ प्रोबेबल मिस्टेक एंड देयर इज अ रूट कॉज. तो उनका कहना है कि जो वर्ब से डिफाइन होते हैं, दैट जैसे कि अगर आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर पुट करना भूल गए, तो ये जो है ये एक प्रॉक्सिमिटी कॉज है, ये रूट कॉज नहीं है. पर रूट कॉज ये हो सकता है कि अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं है, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, तो दैट इज प्रोबेबली अ रूट कॉज. उनका कहना है कि जो एडजेक्टिव से डिफाइन होता है वो रूट कॉज हो सकता है, और जो वर्ब से डिफाइन होता है वो प्रॉक्सिमिटी कॉज होता है. तो आपको रूट कॉज ढूंढना है आपकी मिस्टेक्स का, एंड देन यू कैन इंप्रूव ऑन योर मिस्टेक्स. Once you know that what is the mistake, what is the root cause of your mistakes, then you can improve on them.
or probably you can change your trading system altogether. For designing a new and better way to do things, जब आपको एक बार आपका root cause मिल गया, तो you can have better ways to do the same things and systematically implement those changes. जो भी आपने changes ढूंढने हैं अपनी mistakes को cover करने के लिए, उसको systematically आप implement करें. A lot of time what happens is कि हमको मालूम होता है कि सही तरीका क्या है ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का, पर हम लोग बोलते हैं कि यार वो कि स्क्रीन के सामने बैठे तो हो गया ट्रेड, है ना, ध्यान नहीं रहा. तो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इनटू मार्केट एटलीस्ट, मेकिंग न्यू मिस्टेक्स एंड सो ऑन. दैट इज हाउ ही टुक मार्केट्स ऑल टुगेदर. अब मैंने ये बहुत डिटेल कवर नहीं करा है क्योंकि इट इज समथिंग दैट इज अ वेरी हॉट टॉपिक, होली ग्रेल इनटू द मार्केट्स. रे के हिसाब से व्हाट वाज हिज होली ग्रेल इन 1986 उन्होंने एक सिस्टम बनाया एंड 1983 में जैसे मैंने बताया कि ही वेंट ब्रोक, he had to borrow money from his dad. In 1986 he resurrected his company, he made a system after realizing his mistakes, and in 1995 in less than 10 years his company was managing $4 billion in assets. So 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने जीरो से वापस स्टार्ट करके और $4 बिलियन की कंपनी बनाई थी. तो उनका होली ग्रेल जो उन्होंने 1986 में निकाला था, इट वाज मेकिंग अ हैंडफुल अनकोरिलेटेड बेट्स. तो अलग अलग असेट क्लासेस में उनका मानना है कि असेट क्लास ही ऑल टुगेदर अलग अलग होनी चाहिए. आप स्टॉक्स में, कमोडिटीज में, बॉन्ड्स में, फॉरेक्स में अलग अलग, और वो अनकोरिलेटेड हो, इसका भी ध्यान रखें. यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आपने कमोडिटीज में कोई स्पेसिफिक स्टॉक, से फॉर एग्जांपल क्रूड आपने ले रखा है, तो स्टॉक मार्केट में भी आप वही उसी तरीके की स्टॉक्स में डील कर रहे हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल में. तो उनका कहना है कि अनकोरिलेटेड बेट्स होनी चाहिए और अनकोरिलेटेड अलग अलग एसेट क्लासेस में होनी चाहिए, और देयर शुड बी हैंडफुल. जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है वो 15-20. यू डोंट हैव टू टेक मोर देन 15-20 बेट्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, एंड यू हैव टू लिवरेज देम वेल. ये बैलेंस होनी चाहिए, उसके रिस्क आपको मालूम होनी चाहिए, एंड दे शुड बी लिवरेज्ड वेल. इसके बाद उन्होंने बोला है कि यू शुड हैव अ वेरिएबल सिस्टम दैट अलाउज यू टू साइज योर बेट्स इन रिलेशन टू हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. यानी कि आप जो बेट्स लगाते हैं ना, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा है. दिस इज बेसिकली दिस इज पोजीशन साइजिंग. तो आप जो बेट्स लगाते हैं, दिस इज व्हाट ही लर्न 1986 में. व्हाट चेंज इन हिज एंटायर सिस्टम वाज ही लर्न हाउ टू हैव अ वेरिएबल सिस्टम दैट अलाउड हिम टू हैव डिफरेंशियल बेट्स. तो उन्होंने ये देखा कि अगर मैं एक साथ एक जगह अपनी पोजीशन ले रहा हूँ किसी भी ब्रेकआउट को या जो भी आपका सिस्टम है उसको देखते हुए, और उसकी जगह अगर मैं उस जगह पे कुछ कम पोजीशन बना रहा हूँ और फिर उनको साइज कर रहा हूँ, अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहा हूँ, अगर मार्केट मेरे फेवर में है, तो वो डाउन साइड को और ज्यादा कम कर देता है. यू विल हैव अ मिनिमम डाउन साइड व्हाइल हैविंग अ ह्यूज अपसाइड. तो डिफरेंशियल बेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है और अनकोरिलेटेड बेट्स इंपॉर्टेंट है. द स्ट्रेटजीज टू इन्वेस्ट इन अनकोरिलेटेड एसेट क्लासेस एंड यूटिलाइजिंग पोजीशन साइजिंग टू मैनेज योर रिस्क्स. अब नाउ फॉर डिटेल्स यू विल हैव टू रीड द बुक, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा रहना चाहिए जो आपको बुक पढ़ने के लिए प्रेरित करे. आफ्टर ऑल दिस इज अ बुक रिव्यू, राइट? नाउ ही हैज सजेस्टेड सम लाइफ प्रिंसिपल्स, क्योंकि बुक का नाम ही प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क बाय रे डैलियो. तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए कि कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने सजेस्ट करा है कि हैविंग क्लियर गोल्स. इनका ये मानना है कि जब भी आप अलग अलग स्टेप्स को के थ्रू जाते हैं, जैसे आप गोल्स अगर सेट कर रहे हैं, तो गोल्स को सेट करते हुए आप ये मत सोचिए कि इनको अचीव कैसे करेंगे, राइट? या स्ट्रेटजी क्या होगी. एंड योर गोल्स शुड बी ऑडेशियस. मतलब आपके पास आपके गोल्स जो है वो कितने भी बड़े, कितने भी वाइड हो सकते हैं, वेराइड हो सकते हैं. गोल्स आपके कितने भी ऑडेशियस हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड हैव क्लियर गोल्स, डिफाइंड होने चाहिए, क्वांटिफाइबल होने चाहिए. आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, ये ठीक है, बट इसकी डेफिनेशन नहीं है. अच्छा ट्रेडर, यू नो, इट कैन हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ व्हाट अ गुड ट्रेडर इज. तो वो एक डिफाइंड हो, क्लियर गोल्स हो, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए उसको वो करने. इसके बाद उन्होंने डोंट टॉलरेट प्रॉब्लम्स. तो जैसा कि अभी मैंने इसके पहले डिस्कस करा था कि उनका कहना है कि जब भी आपको कोई लॉसेस होते हैं या जब भी आप कोई मिस्टेक्स करते हैं, तो इट इज बेटर टू आइडेंटिफाई देम रादर देन टॉलरेटिंग देम. डायग्नोज प्रॉब्लम टू गो टू देयर रूट कॉज. तो आपको ये समझना है, जैसे मैंने भी बताया कि प्रॉक्सिमिटी कॉज अलग होता है और रूट कॉज अलग होता है. इफ यू आर एबल टू फाइंड द रूट कॉज, कई बार होता है सर, आप पता है हम लोग, अगर हम लोग ट्रेड कोई खराब चले गया तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा डेटा आ गया इसलिए ट्रेड खराब हो गया, या न्यूज ऐसी थी, या फिर मैंने तो ये भी सुना है कि वो क्या ऑपरेटर ने ऐसा कर दिया. तो अगर ऑपरेटर ने कर ही दिया तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब, क्योंकि ऑपरेटर तो जिंदगी भर आपके ट्रेड की 12 बजाते ही रहेगा. सो इट इज बेटर
not to blame the operator rather than finding the mistake in your own system. डिजाइन ए प्लान, जब आपने अगर आपने रूट कॉज समझ लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक प्लान बनाएं कि आपको कैसे यू हैव टू मूव अराउंड दैट एंड पुश टू कंप्लीशन, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस करा इसके पहले। उनका कहना है कि अगर आपने कोई प्लान बना लिया है, जैसे मैं बता रहा था कि आप लोग बोलते कई बार कि स्क्रीन के सामने बैठे तो बटन दब ही जाता है, तो वो बात क्या है कि आपको ना ट्रेड डालने के पैसे नहीं मिलते सर, आपको प्रॉफिट के ही पैसे सिर्फ मिलते हैं। अगर आपने दिन में 100 ट्रेड डाल दिए तो कोई आपको आगे पैसे दे जाएगा, अरे काम करा मजा आ गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी, राइट। उनका कहना है रिमेंबर दैट वीकनेस डोंट मैटर इफ यू फाइंड सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर तो ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी और का सिस्टम नहीं समझना है, इफ यू फाइंड सॉल्यूशंस द वीकनेस वुड नॉट मैटर एंड अंडरस्टैंड योर ओन मेंटल मैथ्स एंड ह्यूमिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग दूसरों के सिस्टम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना मेंटल मैप समझना होगा कि आपकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या आप एक क्विक डिसीजन मेकर हैं, क्या आप पेशेंट ट्रेडर हैं, मतलब आपके अंदर पेशेंस है, या आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, क्या आप इंट्राडे कर सकते हैं या आप पोजिशनल ट्रेडर हो सकते हैं। क्योंकि किसी का भी सिस्टम देख के और उससे इन्फ्लुएंस होना इट इज वेरी इजी, बट अडॉप्टिंग दैट सिस्टम इज वेरी टफ बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू योर ओन जर्नी टू अडॉप्ट दैट सिस्टम ऑल्सो। आप किसी का सिस्टम ऐसा का ऐसा अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये अंडरस्टैंड योर ओन मेंटल मैप एंड ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने बताया इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए। तो उनका कहना है कि द बिगेस्ट थ्रेट टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज इमोशंस। तो ये तो बड़ा मतलब काफी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली द डिसीजन वुड टर्न आउट मोर ऑफन देन नॉट इट विल टर्न आउट टू बी अ ब्लंडर। सिंथेसाइज द सिचुएशन एट हैंड। तो जो मैं भी आपको बता रहा था, उनका कहना है कि भाई अगर आप दूसरों को देखते रहेंगे कि यार ये तो इसको इतना बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है या फलाना इतना पैसा कमा रहा है, फोरम में मैसेजेस आते हैं एंड आई हैव नॉट रेड अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन पास्ट फ्यू डेज। मैं ये नहीं बोलता कि प्रॉफिट के ज्यादा आते हैं कि लॉस के, बट मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉफिट के मैसेजेस ही ज्यादा आते हैं। तो हर कोई आदमी फोरम पर पैसे कमाते हुए दिख रहा है, बट यू हैव टू सिंथेसाइज योर सिचुएशन एट हैंड विदाउट लुकिंग एट अदर्स दैट व्हाट अदर्स आर डूइंग। एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली है, 80-20 रूल इन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने बोला है कि 80% ऑफ योर टारगेट्स वुड बी कंप्लीटेड बाय 20% एफर्ट। आप 20% एफर्ट डाल के अपना 80% टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, बट टू अचीव द रिमेनिंग 20% यू हैव टू पुट 80% ऑफ एफर्ट। तो कई बार क्या होता है मालूम आपको कि ये तो मैंने काफी फ्रीक्वेंटली देखा है कि आप है ना हमारी फोरम में लोग है ना एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम जज करने के लिए, मतलब देयर इज अ कंपटीशन कि बिल्कुल एक रुपये से, और बल्कि पैसे में भी शायद किसने कितना बढ़िया टॉप जज करा है, बट इट इज मतलब ये बड़ा डाउटफुल है कि वो जिसने एग्जैक्ट टॉप या बॉटम जज करा है उसने एग्जैक्ट टॉप पे बेच के और एग्जैक्ट बॉटम पे खरीदा है कि नहीं खरीदा। तो ये जो 20% आखिरी का अचीव करने की हम कोशिश करते हैं ना, इसमें हम लोग काफी कुछ लूज कर देते हैं और एफर्ट बहुत ज्यादा डल जाता है। एक और बहुत अच्छी चीज जैसे लिवरमोर ने कही है इसी में, उनका कहना है कि इन ऑर्डर टू अचीव द लास्ट 8 enough money has been lost in markets to create a concrete road around the globe। इतना पैसा आखिरी 8 टॉप और बॉटम जज करने के चक्कर में लोगों ने नुकसान करा है बाजार में कि आप पूरी दुनिया के अराउंड इक्वेटर के पैरेलल एक सीमेंट की कंक्रीट की रोड बना सकते हो उस पैसे से। लॉजिक, रीजन एंड कॉमन सेंस आर योर बेस्ट टूल्स। ये तो हमारी फोरम में कई बार डिस्कस हो चुका है, सो इट इज नो पॉइंट डिस्कसिंग इट। मेकिंग योर डिसीजन एज एक्सपेक्टेड टाइम वैल्यू कैलकुलेशंस। इसमें इनका कहना है कि देखिए सर कई बार क्या होता है कि हम जब सिस्टम देखते हैं, आप देखते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कोई सिस्टम है जिसमें 80% प्रोबेबिलिटी है विनिंग ट्रेड्स की या 70% प्रोबेबिलिटी विनिंग ट्रेड्स की, तो वो सिस्टम बेटर होगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 70-80% प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसमें 1:1 है कि 100 रुपए अगर आप प्रॉफिट होगा तो 100 रुपए का, नुकसान होगा तो 100 रुपए का। से फॉर एग्जांपल 80-20 का स्ट्राइक रेट है और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो अगर आपके 8 सक्सेसफुल ट्रेड्स हुए और आप हर ट्रेड में 1-1 रुपया कमा रहे हो, तो आप 8 रुपए कमा रहे हो और 2 ट्रेड्स में नुकसान, 2 रुपए का नुकसान, 6 रुपए आपको नेट बच रहे हैं, ये मान लेते हैं। पर वहीं अगर आपका 30-70 का रेशियो है, मतलब रिस्क आपका जो सक्सेस रेट है वो 30% है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपका 5:1 है, तो आपको 3 ट्रेड्स में 15 रुपए मिल रहे हैं और 7 ट्रेड में आपके जा रहे हैं सिर्फ 7 रुपए, तो आपको तो भी 8 रुपए बच रहे हैं। सो अल्टीमेटली यू आर मेकिंग मोर। तो क्या होता है कि ये आपको समझना जरूरी है कि जो आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशंस होने चाहिए रादर देन प्लेन सिंपल वैल्यू आपने सक्सेस रेट देखने के। अब उनका एक कहना है कि प्रायोरिटाइज
बाय वेइंग अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ नॉट डिसाइडिंग। उनका कहना है कि जो आपके जितने भी जब ये हम लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर हम लोग गोल सेट करने की बात कर रहे हैं कि जब आप अपने गोल सेट करते हैं तो जो आपके मस्ट डूज यानी कि जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले आनी चाहिए रादर देन लाइक टू डूज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको लाइफ, क्योंकि ये लाइफ प्रिंसिपल्स का पार्ट है, तो आप इसको उस तरीके से समझिए कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का तो ऑल योर मस्ट डू शुड कम बिफोर योर लाइक टू डूज। उन्होंने बोला है कि इवन इफ यू मिस आउट ऑन योर लाइक टू डूज इट इज बेटर देन मिसिंग आउट ऑन योर मस्ट टू डूज। तो आप अपनी जरूरी चीजें ना कर पाए उसकी जगह ज्यादा बेटर है कि वो चीजें जो आप करना चाहते हैं वो आप ना कर पाए। यूज प्रिंसिपल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला है कि आप जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं आप उसको लिख लीजिए। जब आप उसको लिखना चालू करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव प्रिंसिपल्स टू डिसाइड ऑन अ सिचुएशन। तो उनका कहना है कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके लिए आप प्रिंसिपल्स को यूज करिए एंड कन्वर्ट योर प्रिंसिपल्स इनटू एल्गोरिथम एंड लेट द कंप्यूटर मेक डिसीजंस। ये उन्होंने कई बार अपनी पूरी बुक में बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनके हिसाब से। और दिस इज वन थिंग बिकॉज ऑफ विच ही कुड मेक वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनके सारे डिसीजंस मतलब कंपनी के डिसीजंस है। उनके यहाँ ऐसा होता है कि हायरिंग के डिसीजंस और ये सारे डिसीजंस भी कंप्यूटराइज है, तो वहाँ पे इमोशन, ह्यूमन इमोशन ये वो प्ले में नहीं आता। उनका कहना है ऑफिस पॉलिटिक्स इससे नहीं होती, ये सब चीजें। तो इसलिए दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक टू यूज दीज टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। दूसरा, इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस करा आइडिया मेरिटोक्रेसी पे, क्योंकि ये वर्क प्रिंसिपल्स का पार्ट है। तो इसको समझाने के लिए आई गिव यू एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टेड। तो उनका कहना है कि रेडिकल ट्रूथ प्लस रेडिकल ट्रांसपेरेंसी एंड बिलीवेबिलिटी वेटेड डिसीजन मेकिंग, ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन वुड वर्क वुड थ्राइव, ये काफी बढ़ेगी। अब रेडिकल ट्रूथ का मतलब क्या है? दैट जैसे मैंने आपको बताया एवरीबडी इज अलाउड टू पुट अप हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो हालांकि मुझे लगता है कि हम लोग सभी लोग जितने भी मेंबर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, हम लोग सबसे सजेशंस लेते हैं, एवरीबडी इज अलाउड टू पुट योर सजेशन, बट कम से कम कोर कमेटी की मीटिंग में आई कैन वाउच कि एवरीबडी पुट्स अप हिज पॉइंट। यू नो, हम हर आदमी, हम लोग जब डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में अब अगला क्या होगा या आगे क्या होगा या कैसे हमको आगे चलना है, कैरी करना है ऑपरेशंस कंपनी के, तो हर आदमी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ट्रेडिंग में भी जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज करना चाहते हो तो कई बार होता है कि आपकी एक ब्लाइंडनेस होती है, वो जो लॉस है उसका एक इमोशनल फॉलोआउट होता है, तो आप अपनी गलतियों को सही से नहीं समझ सकते। तो अगर आप रेडिकल ट्रूथ की अप्रोच को अपनाएंगे तो आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो कि ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग को समझते हैं, तो इफ यू अलाउ देम टू यू नो टू टेल यू व्हाट मिस्टेक्स यू हैव मेड, probably they'll help more in finding out the mistakes. रेडिकल ट्रांसपेरेंसी का जैसे मैंने आपको बताया, उनका कहना है कि अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो प्रिंसिपल से गवर्न होगा और उसमें अगर रिटन प्रिंसिपल्स होंगे कि कब किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो इट विल क्रिएट मोर ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिलीवेबिलिटी वेट डिसीजन मेकिंग, ये उन्होंने बोला है कि ये मार्केट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उनका कहना है कि द बिगेस्ट थिंग दैट ही लर्नड आउट ऑफ हिज 83 क्राइसिस वाज दिस। उन्होंने बोला कि आई लर्न दैट इट इज द जर्नी फ्रॉम आई नो आई एम राइट टू हाउ डू आई नो आई एम राइट। सो व्हेनेवर यू टेक अ ट्रेड, while taking a trade, if you think that how do you know you are right, probably you will make better bets. आप ज्यादा अच्छी तरीके से बेट कर पाएंगे कितना पैसा उस ट्रेड में लगाना है। अगर उसका स्टॉप लॉस जाता है तो आपका कितना पैसा जाएगा। तो जो ये थॉट है कि हाउ डू यू नो यू आर राइट, या अगर उसका स्टॉप लॉस चले गया तो कितना जाएगा, बिकॉज कितना आएगा ये तो अपने को मालूम होता है, पर जाना कितने वाला है ये पहले सोचना जरूरी है। तो आइडिया मेरिटोक्रेसी इज वन थिंग दैट ही हैज स्ट्रेस्ड इन हिज एंटायर बुक। पूरी बुक इसी के बारे में बात करती है। फिर इन्होंने बोला है कि टू गेट द कल्चर राइट, ये भी वर्क प्रिंसिपल्स में से है, ट्रस्ट इन रेडिकल ट्रूथ एंड रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। काफी सारी चीजों का रिपीटेशन इसलिए क्योंकि पूरी बुक में सिर्फ उन्होंने यही चीजें काफी बार स्ट्रेस करी है। एंड उनका ये मानना है कि उनकी कंपनी जो 2 बेडरूम से चालू होकर अगर आज 16,000 करोड़ यूएस डॉलर्स का फंड मैनेज कर रही है, तो उसके रीजंस ये प्रिंसिपल हैं जो उन्होंने थ्रू आउट हिज लाइफ फॉलो करे। कल्टिवेटिंग मीनिंगफुल वर्क एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट में आप देखिए कि क्या है कि सबका जो कॉमन गोल है वो एक ही है, एंड द गोल इज टू लर्न एंड शेयर, KEI जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमारा कॉमन गोल है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी थ्राइव कर रहा है।
because we have meaningful relationships. Create a culture where it is okay to make mistakes but unacceptable not to learn from them. ये important है जो उन्होंने बोला है बार बार कि आप अपनी मिस्टेक से लर्न करिए. Cultivate decision making and recognize how to go beyond disagreements. कई बार क्या होगा कि जब आप ये जो ओपन कल्चर की अपन बात कर रहे हैं, ओपन माइंडेडनेस की बात कर रहे हैं, रेडिकल ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें कई बार क्या होगा कि जब आप डिस्कस कर रहे हैं किसी से तो आपको ऐसा लगेगा कि एट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम नाइदर यू आर एबल टू कन्विंस द अदर्स जो आपको बता रहे हैं कि आपकी क्या गलतियां हो सकती है, जो आपने गलतियां देखी हैं, तो ना तो आप उनको कन्विंस कर पा रहे हो ना आप कन्विंस हो पा रहे हो. सो यू हैव टू लर्न टू गो बियॉन्ड डिसएग्रीमेंट्स. एक पॉइंट के बाद आपको समझना पड़ेगा कि भैया डिसीजन कैसे लिया जाए, एंड वंस द डिसीजन इज मेड यू हैव टू बैक इट अप. मैंने इसमें कुछ बुक में से एक्सेप्ट्स लिए हैं, बुक के कोट्स ऐसे कैसे लिए हैं. Whatever success I've had in life has had more to do with my knowing how to deal with my not knowing than anything I know. जो चीज कई बार बोलते हैं ये वही है, all I know is I don't know anything. कि जो भी उन्होंने सक्सेस प्राप्त करी वो इस चीज से कि उनको क्या नहीं पता था उससे कैसे डील करना है. Probably what he means is by how to deal with losses or losing trades. I believe the key to success lies in knowing both how to strive for a lot and fail well. By failing well, he means that being able to experience painful losses without being knocked out of the game. जो मैंने बताया कि आप भैया बैंक्रप्सी की सिचुएशन ना आए उतना ही नुकसान बेटर है. Believability with decision making, जिसमें उन्होंने बोला it is a journey from I know I am right to how do I know I am right. उन्होंने ये बोला है कि you must be clear about your principles, you must write them down. तो आप लोग अपने ये जो ट्रेडिंग जर्नल की बात है ना सर, ये अल्टीमेटली बात ट्रेडिंग जर्नल की होगी. जो प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, राइटिंग डाउन द प्रिंसिपल्स, अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं तो इट विल गिव यू योर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड देन यू मस्ट फॉलो, देन यू मस्ट वॉक द टॉक. And if inconsistencies occur, you must explain how they have occurred. Ray says, इनका कहना है कि maturity is the ability to reject good alternatives in order to pursue even better ones. तो जब हम फोरम पे बात करते हैं तो कई सारे बहुत अच्छे आपको थ्योरीज या सिस्टम्स मिलेंगे ट्रेड करने के, but you must learn to reject good alternatives even if an alternative seems good, to reject it so as to pursue a better one जो आपके लिए better है. उन्होंने कहा कि all great investors and investment approaches have had bad touches. जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं सबके साथ कुछ ना कुछ कभी-कभी बुरे वक्त आए हैं. Losing faith in them at such times is a common mistake as getting too enamored of them when they do well. तो ये एग्जांपल हमारे रोहित भाई बैठे, रोहित भाई का एक सिस्टम था, रोहित भाई ने सिस्टम चलाया 10-11 महीने और उसमें खूब पैसे मिले. तो एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ गया, he got too enamored with it. और फिर जब उस सिस्टम को उसके बाद चलाया गया तो वो सिस्टम में थोड़े टाइम तक बैड पैचेस थे, लॉसेस हुए. पर जब लॉसेस हुए तो रोहित भाई ने सिस्टम ही बंद कर दिया. रोहित भाई ये कोड आपके लिए डाला है, ठीक है. तो उनका कहना है कि because people are more emotional than logical, they tend to overreact to short-term results. They give up and sell low when times are bad and buy too high when times are good. ये आपको सीखना पड़ेगा. कोई सा सिस्टम, जैसे अगर आप ज्ञान अप्रोच फॉलो कर रहे हो, आप हार्मोनिक फॉलो कर रहे हो, तो या आप तांत्रिक आदि अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो क्या होता है कि जब आपको लगता है थोड़े दिन तक अगर आप अच्छा पैसा आ रहा है तो आप किसी ने मैसेज से डाल दिए 8 दिन किसी को अच्छा प्रॉफिट हो गया तो आप उसकी अप्रोच ढूंढने निकल जाओगे. एंड अगर आपको लॉसेस हो गए तो फिर यू जस्ट रिजेक्टेड, आप उसको छोड़ ही देते हो ऑल टुगेदर. इट इज बेटर टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस ऑफ वेयर यू वेंट रॉन्ग. एक बर्नार्ड ब्रंच उस टाइम के 1980s के, ही वाज वन ऑफ द वेरी फेमस इन्वेस्टर्स एट दैट टाइम. तो उनका एक कोट इन्होंने लिखा है, इफ यू आर रेडी टू गिव अप एवरीथिंग एल्स एंड स्टडी द होल हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ द मार्केट एंड ऑल द प्रिंसिपल कंपनीज हु स्टॉक्स आर ऑन बोर्ड as carefully as a medical student studies anatomy. आप सारी कंपनियां जो मार्केट में ट्रेड करती हैं, अगर एनएससी में 5,000 की मार्केट कंपनियां ट्रेड करती हैं, उनको आप स्टडी कर रहे हो, एंड यू हैव एडिशन, यू हैव coolness of a gambler, sixth sense of a clairvoyant and courage of a lion, you have a ghost chance of making profits.
इसके बाद ये टेकअवेज है. Making trading journal is very important. Writing down your principles is very important. Coding principles and letting computer decision is important. One should have clear exit strategies. One should refrain from everything a losing trade. You should know when not to trade. You should encourage thoughtful disagreement and modify your principles accordingly. That 80% of your targets will be achieved by 20% of effort. It is inevitable that you will fail, but when you do, you should learn how to fail well. It is important. And trust in radical truth and radical transparency. That's it. वेरी थैंक यू वेरी मच मनीष भाई. आपकी ये जो अभी पूरी देखी मैंने, उसके बाद ऐसा कुछ जो मुझे महसूस हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेडियंट जो सक्सेस के लिए चाहिए होता है, वो मुझे लगता है शायद यहाँ पे बैठे हुए किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है. वो क्या है? मुझे जो लगा ऐसा लगता है कि वी नीड टू गो ब्रोक 2 to 3 times in our life और बिकम महान. तो ये शायद बहुत मुश्किल है. Now I would like to call